بولی اس میں خوش آمدید. میں ہوں طارق مسعود علیانی. میں ہوں ماہرخ شہریار. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے موسم کی بات کریں گے. آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے تیز ہواؤں کے جھکڑ چلے, تباہی مچی, پھر طوفانی بارش نے شہر کو بھگو کر رکھ دیا. کراچی میں برسات سے اموات کی تعداد 21 تک جا پہنچی ہے. سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ بلدیہ ٹاؤن میں پیش آیا. بارش کے باعث مختلف حادثات میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ہوا کے جھکڑ کئی گھروں کی چھتیں تک گرا گئے اور کئی درختوں کو گرا دیا. متعدد مقامات سے سولر پینلز گرنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں. کراچی میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی. بلدیہ مدینہ کالونی میں دیوار گرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا, جہاں 13 افراد جاں بحق ہوئے. پولیس حکام کا کہنا ہے جاں بحق ہونے والے نشے کے عادی افراد تھے. بارش سے بچنے کے لیے گراؤنڈ کی دیوار کے ساتھ جمع ہو گئے کہ اچانک دیوار گر گئی, جس سے ملبے تلے دب کر 13 افراد جان سے گئے. دوسری جانب قائد آباد میں گھر کی چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے, جن کی شناخت شیر ولی اور ریاضت کے نام سے ہوئی. کورنگی نمبر 3 میں چھت گرنے سے شینا نامی خاتون جان سے گئیں, جبکہ ملید میمن کوٹ کے قریب کرنٹ لگنے سے حضرت نامی شخص جاں بحق ہو گیا. کورنگی نمبر 5 کے قریب درخت گرنے سے ایک شخص جان سے گیا, جبکہ گلستان جوہر کامران چورنگی میں دیوار گرنے سے 4 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی. کلفٹن نیلم کالونی کے قریب درخت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق ہوئی. اتر بھینس کالونی پیرانو کوٹ میں چھت گرنے سے 4 سالہ زینب جان سے گئی. دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کراچی میں مزید بارش کا امکان ظاہر کر دیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بادل سمندر پر موجود ہیں جو شہر کی جانب بڑھ سکتے ہیں. آج تیز بارش سے 1-2 اسپیل آ سکتے ہیں, جبکہ آج 50 ملی میٹر سے زائد بارش متوقع ہے. کراچی میں طوفانی بارش کے دوران کرنٹ لگنے, چھتیں گرنے اور دیگر حادثات میں اب تک 21 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. اس وقت سچویشن کیسی ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, شہر کے مختلف شاہراہوں پر کس طرح کی صورتحال ہے, بات کریں گے. ہمارے ساتھ محمد کاشان موجود ہیں. کاشان, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, دیکھیں کراچی میں ہونے والی بارشوں نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے. کل سے لے کے اب تک بارش کے نقصانات سے جو 21 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. پہلا واقعہ جو ہے بلدیہ ٹاؤن کے قریب پیش آیا ہے, جہاں پر دیوار گرنے سے 13 افراد جاں بحق ہو گئے. ایسے ہی لانڈی کے علاقے میں چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق ہوئے, جبکہ کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہوئے. ان تمام افراد کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال تو منتقل کر دیا گیا ہے, لیکن دوسری جانب دفاتر جانے والے شہری جو ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں سندر کے مقام پر موجود ہوں. یہ گرو مندر کا وہ مین شاہراہ ہے جو کہ نماز چورنگی کی جانب جا رہی ہے. پوری شاہراہ جو ہے وہ زیر آب آ گئی ہے. جگہ جگہ جو ہے پانی جمع ہونے سے شہریوں کو دفاتر جانے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. لیکن دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کراچی میں رین ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں کہیں بھی KMC اور DMC کا عملہ ہمیں روڈوں میں نظر نہیں آ رہا. شہریوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جلد سے جلد شاہراہوں کو کلیئر کرائی جائے تاکہ ان کی آمد و رفت میں آسانی ہو سکے. لیکن کراچی کے مختلف مقامات پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برساتی پانی موجود ہے. اگر ہم کراچی کے مضافاتی علاقوں کی بات کریں تو وہاں ابھی بھی روڈوں کے اوپر پانی موجود ہے. نکاسی اب کے لیے اب تک ڈی واٹرنگ پمپ نہیں پہنچایا گیا ہے, جسے شہری شدید مشکلات کا شکار ہو کے اپنی منزل کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں. کاشان, بہت شکریہ. اب آپ کو یہ بتائیں کہ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مجید کالونی لانڈھی میں بارش کے سبب مکان کی دیوار گرنے سے میاں بیوی کی اموات پر افسوس کا اظہار. غمزدہ خاندان سے تعزیت کرنے گورنر سندھ کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور مالی معاونت کا اعلان بھی کیا. نہال ہاشمی نے ریاست بی بی اور ان کے شوہر کی تدفین, میت کو آبائی علاقے منتقل کرنے اور دیگر اخراجات اپنی جیب سے ادا کرنے کا اعلان بھی کیا. کراچی میں ایسی ہوا چلی کہ چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں. طوفانی بارش نے کئی مقامات پر تباہی مچا دی, کہیں دیوار گرا دی, کہیں چھت اڑا دی. چھوٹی موٹی اشیاء تنکوں کی طرح اڑتی دکھائی دیں. بارش کے باعث لٹکتے تار بھی لٹکتے تلوار بنے رہے. جو زد میں آیا جھلس گیا. اسپتالوں میں زخمیوں کا تانتا بن گیا. کراچی میں بارش کے بعد متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے. ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بجلی تقسیم کے نظام میں 2100 میں سے 1950 فیڈرز کی بجلی فراہمی کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک کے فیلڈ ٹیمیں مقامی فالٹس کی درستگی کے لیے متحرک ہیں. موسم کی بدلتی صورتحال کا بھی بدستور جائزہ لیا جا رہا ہے. مقامی سطح پر فالٹس کی بروقت درستگی کے لیے فوری رابطہ سوشل میڈیا چینلز اور KE لائیو ایپ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. کہ الیکٹرک نے صارفین سے گزارش کی ہے کہ بجلی تنصیبات سے مناسب فاصلہ برقرار رکھیں اور کھمبوں, انٹرنیٹ اور کیبلز وغیرہ کے تاروں کو چھونے سے گریز کریں. کراچی میں طوفانی بارش جاری ہے. سندھ حکومت نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم سامنے آیا ہے. تمام بلدیاتی اداروں اور DMCs کو فوری طور پر فیلڈ میں نکلنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. کہا گیا کہ شہر کی اہم شاہراہوں اور نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کا کام ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن تمام پمپنگ اسٹیشنز پر مشینری اور جنریٹرز کو فعال رکھے.
मालम जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खूबसूरत वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, हर तरफ चांदी बिखर गई। सयाहती मकाम का हुस्न मजीद निखर गया, मौसम खुशगवार हो गया। कुदरत के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सयाहों की कसीर तादाद ने सुआत का रुख कर लिया। रुक करेंगे मानसहरा और इसके गिरदोनवा का, जहां पर दूसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तफसीलात लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। चौधरी कैसर आगाह कीजिए। मानसहरा और इसके गिरदोनवा में आज जो दूसरा दिन है, बारिश का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है। बारिश के बाद मानसहरा और इसके गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। मानसहरा के अगर बलाई पहाड़ी इलाकों की बात करें, वादी नराम, वादी कगान, झील सैफुल मलूक, बटाकुंडी, बाबू सटा, बेसर और जलखड़, तो वहाँ पर बारिश के साथ साथ हल्की बर्फ़बारी भी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ के जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं वो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कोंच वैली और सिरन वैली की, तो कोंच वैली और सिरन वैली के अंदर जो है बारिश के बाद जो है वहाँ का मौसम जो है काफ़ी सर्द है। कोंच वैली के जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं, जिनमें मूसा का मसल्ला और जो दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर बारिश के साथ साथ हल्की बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से वहाँ का जो मौसम है काफ़ी सर्द हो चुका है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों का जो ये सिलसिला है वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से मानसहरा और इसके गिरदोनवा का मौसम जो है वो सर्द रहेगा। ठीक है, तफसील ज़ाइलों की बारिश की बात करेंगे। अमरीकी और सिहोनी जारहत ने मशरिक़ वस्ता का अमन गारत कर दिया है। तवानाई तनसीबात पर इसराइली हमले के बाद ईरान ने पूरे खलीज में अमरीकी मफादात से वाबस्ता तवानाई तनसीबात पर धावा बोल दिया है। खित्ते के ममालिक ईरान से खफा हो गए हैं। सऊदी अरब ने जवाबी वार से खबरदार किया। कतर ने 2 ईरानी सफारतकार मुल्क बदर कर दिए। जनूबी पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमला, 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के खजाने पर बमबारी ईरान को मजीद मुश्तइल कर गई। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ऐलान किया कि अब खित्ते में अमरीकी मफादात से वाबस्ता तवानाई तनसीबात की खैर नहीं। कतर में लफान गैस फील्ड पर हमला कर दिया, जिससे आग भड़क उठी। हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। जवाबन कतर ने ईरानी सिक्योरिटी और मिलिट्री अताशी को नापसंदीदा शख्स करार देते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अबूधाबी में हबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर मीज़ाइल का मलबा गिरने से तनसीबात मुतासर हुई। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में ऑयल तनसीबात और फौजी अड्डों पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। ईरान ने ये कार्रवाई उस वक्त की जब अमेरिका और इसराइल की जानब से ईरान की सूबे वो शहर में ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने हमलों के लिए ईरानी जवाब नाकाबिले यकीन करार दिया। कहा, इन कार्रवाइयों पर हमेशा सबद नहीं करेंगे। अरब और इस्लामी मुल्क के मुशावरती इजलास के एलामिया में खित्ते पर ईरानी हमलों की पुरजोर मजम्मत की गई। कहा, ये हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा आर्टिकल 51 के मुताबिक खलीजी रियासतों को दिफा का हक़ हासिल है। आपको बताएं कि इसराइल की जानिब से ईरानी गैस फील्ड पर हमला सदर ट्रंप को नाखुश कर गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से मुतालिक उन्हें किसी किस्म का कोई इल्म नहीं था। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल आइंदा पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई ट्रंप को एतमाद में लेकर की गई है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया है कि अगर खलीज में तवानाई तनसीबात पर हमले बंद न किए गए तो पारस गैस फील्ड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। इसराइल लबनान में खून की होली खेल रहा है। 3 रोज़ में 45 अफराद को शहीद कर दिया। सिर्फ बुध के रोज़ 20 शहादतें रिपोर्ट हुई। आपको ये बताएं हम कि लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक शहदा में 14 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें बैरूत में शहीद किया गया। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 900 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके, जिनमें से 100 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं, जबकि 2200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि काबुल में हालिया हमले का असल हदफ अफगान तालिबान का गोला बारूद, हथियार और ड्रोन तैयारों का डिपो था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए वो पूरे शहर ने देखे। हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इंटरव्यू। कहा कि तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं पहनते, सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मंशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGISPR ने एक मरतबा फिर भारत को अफगान तालिबान और खवारिज की सहूलतकारी करने पर आड़े हाथों लिया। बोले कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो भारत ने फराहम किए हैं। हमारी अफगान अवाम से लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। जुड़वा शहरों के परदेसियों ने अपने आबाई घरों में जाने के लिए बस अड्डों का रुख कर लिया, मगर शहरियों का टिकट ज़्यादा होने का शिकवा भी है, जबकि किराए भी ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक सईद आवान से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है, घर भी जाना है, किराए भी ज़्यादा हैं। अब क्या करें, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के फैज़ाबाद अड्डे पर मौजूद हैं, जहां पर लोगों का रश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों का ये भी शिकवा है कि गाड़ियां नहीं मिल रही, अगर मिल भी रही हैं तो किराए ज़्यादा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप आज गाँव जा रहे हैं? जी सर,
गांव जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आके बड़ी मायूसी हुई है। हम तो लोग आते हैं यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ के हमने अपने अब्बाई गांव जाना होता है ईद की वजह से, लेकिन अब मसला ये हो गया है कि यहाँ पे आके हम देख रहे हैं कि अड्डे में गाड़ियाँ ही नहीं खड़ी। रीज़न ये है कि इन लोगों को किराए बढ़ाने होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली कहते नहीं है इंतज़ामिया की वजह से ना, कुछ थोड़े बहुत तो बढ़ा दिए इन्होंने, लेकिन मज़ीद इनकी ख्वाहिश ठीक होती है है मलिक सईद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सखर का रुख करेंगे जहां पर ईद उल फितर के हवाले से खरीदारी जारी है। लोग जहां अपने पसंदीदा लिबास खरीद रहे हैं, वहीं पर लिबास के साथ साथ सिंधी टोपी की मांग भी बढ़ गई है। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली। खूबसूरत लिबास खरीद रहे हैं, उससे मैचिंग करते हुए जूते सैंडल खरीद रहे हैं, वहीं सिंधी टोपी भी भरपूर अंदाज में खरीदी जा रही है। इस वक्त हम घंटा घर चौक पर मौजूद हैं। आप देखें बच्चे बड़े तमाम लोग जो है वो सिंधी टोपी खरीद रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो सिंधी टोपी खरीदने आए हैं। ईद पर जो है ट्रेडिशन है, अपने लिबास के साथ खूबसूरत नई सिंधी टोपी जो है ख़रीदी जाती है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो अपने बच्चों को सिंधी टोपी पहनाने के लेके आए हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, सिंधी टोपी जो है वो आपने ख़रीद ली है, क्या सूरत हाल है? जी सर, मैं हर साल अपने बच्चों को लिए ईद की सिंधी टोपी ख़रीदने लिए आते हैं। अभी इस बार भी हम खुश खरम से आए हैं ईद की ख़रीदारी करने के लिए। सिंधी टोपी ख़रीद लिया है, बच्चे ने अपने मर्ज़ी से, अच्छी चीज़ें हैं, हम हर साल ख़रीदते हैं। हर साल खरीदते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो हर तरफ सिंधी टोपी फरोख्त करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें आगाह किया सखर से। और अब आपको ये बताएं कि मुल्क भर की तरह कराची में भी बोहरी बरादरी ईद उल फितर मना रही है। ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा सदर ताहिरी मस्जिद में हुआ। नमाज ईद की अदायगी के बाद पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर ताहिरी मस्जिद के इतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। खेलों के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के एंथम के लिए गुलकारों का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान के नामवर गुलकार आतिफ असलम एक मरतबा फिर अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे, जबकि पहली मरतबा साबरी सिस्टर्स भी उनका साथ देंगी। आयमा बेग और दानिया कंवल भी एंथम का हिस्सा होंगी। PCB के मुताबिक इस साल एंथम का थीम बीट पे खेलेंगे रखा गया है, जो क्रिकेट के जोश जज्बे को उजागर करेगा। आतिफ असलम इससे कबल 2022 में PSL के 7वें एडिशन का एंथम गा चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।